Welcome everyone. In this session, I will discuss about the foreground and background colors, color swatch tools, option bar, layer panel, selection tools, etc. Okay, so come start foreground and background color. So there is some shortcut keys are there. Okay, so there's some shortcut keys: D to set the default foreground and background colors, and K to swap the both colors. Okay, now so foreground color is the color of the drawing tools that is used to draw on the canvas, and background color is used to color of the canvas, which is by default white. Okay, these colors can be set from the foreground and background color from on the control box. So everyone, foreग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर देखिए क्या है कि अगर हम हमारे कोई भी पेंट प्रोग्राम है, नॉर्मली तो नहीं कहेंगे, नॉट इन पेंट प्रोग्राम, बट जितना भी हम लोग वीडियो ये सॉरी फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर जो बड़ा बड़ा यूज करते हैं ना, लाइक एज फोटोशॉप या फिर लाइक एज जिम, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर का यूज करते हैं, ठीक है. In case of if I have selected the foreground color, if I have selected the foreground color, then all of our brush will act like as a foreground color. Okay, and in case of if I will select some areas and delete the particular area, then it will affect with the background color. Okay, now so let's start. Open the Photoshop. Okay, in the first video I have already explained how to download the Photoshop and install. Then click on I am going to open an image. Which image I am going to take? For example, as an example, gallery. Um, like this image I am going to take. So click on open with and then open with Photoshop. So in this image you can see there is foreground color and background color, it is appearing. Okay, now there is foreground color and background color, it is appearing. So first one is the foreground color and second one is the background color. Okay, you can switch the color. Okay, you can switch the color by pressing D. Okay, so I am changing the color, that is like red, then okay, and after that color has been changed. Now if we will use the like as brush, then it will affect with a foreground color, you can see. Okay, now I told you that for background color. Okay, now foreground color you have seen, background color. So now I am going to select, and then I have selected some areas. If I will delete this area, sorry, just a second, click on desktop, save as GP. Just wait for a minute. Again, open this file. Where was the file? Yes. So if I will select this area and I will delete, then it will take the background color. You can see it has taken the background color. Okay, now. So next, next that is swatch. Okay, open the Photoshop and then I am going to use swatch. Okay, now so open an image. I am taking that previous image which I have opened.
Okay, now I am going to use swatch. Swatch is used to pick the color. Okay, now. So if I my foreground color is, just a second. Yes. Okay. My foreground color is red. If I want to choose different, then I will take from here swatch. Okay, now I have taken pink. Okay, then my foreground color is pink. In case of if in your computer if swatch is not there, then no need to don't worry. You will have to click on Window tab and then choose color. Okay, or also choose swatch option. If you will choose, then it will appear on the right side of your window. Okay, now so next swatch is used to pick the color. Okay, now tool option. Okay, it is a very important thing. So everyone, if I am taking like another tool like brush tool, I am taking. Okay, I am taking a brush tool. It is a brush tool. It will appear also appear the name brush tool. Okay, now so I have taken brush tool. If you will use any tool, okay, now if you will use selection tool, if you will use crop tool, if you will use move tool, if you will use brush tool, then sub options of that tool will be there. So I have taken rectangular tool. Then this the sub option of this tool is appear at the top of ribbon. Okay, move tool sub options it has given, cropping tools it has given. So every tool is having its own sub options. Okay, on tool options. So if I want to choose normally I chose a brush, and then my foreground color is pink, so it will flow the color like this. First time it will flow the color like this. Okay, now I want to decrease the color flow 20%. Now you will see, you can see how much color it is flowing. Okay, now so sub options are there. Sub option is used to apply the special effects or a special tools options of that selected tool. Okay, now next, that is layer panel. Very important concept. लेयर पैनल है क्या, समझिए। लेयर पैनल क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एवरीवन। अगर आप मल्टीपल इमेज पर काम कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल इमेज पर काम कर रहे हैं, जैसे कि हम एक ले लेते हैं, ये इमेज ले लिए, ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट हम इसमें डाल देते हैं, तो देखिएगा इसका एक लेयर बन जाएगा। जैसे कि अभी हम इस इमेज को की बात कर रहे हैं जो आपको करेंटली स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा लेयर में, ठीक है, लेयर में यहाँ पर आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा। लेकिन जैसे हम इस इमेज का कुछ कुछ पीस या फिर कुछ टुकड़ा अगर हम इस पर डालते हैं तो ये एक इमेज तो आ गया, लेकिन पहले वाला भी इमेज इसी के अंदर है, ठीक है, इसमें भी पहले वाला इमेज इसी के अंदर है। तो यहाँ पर जैसे ही पहले वाला एक जिस जो इमेज हम कट करके या कॉपी करके इसके अंदर डाले हैं प्रीवियस इमेज में, यहाँ पर देखिए लेयर वाइज बन जाता है, ठीक है, लेयर वन। ये हमारा एक बैकग्राउंड पहले का इमेज है और एक लेयर वन जो हम कट करके वहां से लाए हैं, कट कहिए या कॉपी कहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से सपोज कि लाइक सब्सक्राइब का जस्ट लाइक सब्सक्राइब का हम इसमें लेते हैं, तो ये एक अलग लेयर बनाएगा इसमें। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लेयर टू बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेयर को आप चाहे तो मैनेज भी कर सकते हैं, डाउन टॉप। लेयर क्या है समझिए। जब हम मल्टीपल इमेज पर काम करते हैं ना, एक ही सेम विंडो पर मल्टीपल इमेज पर काम करते हैं, तो हर एक इमेज का अपना अपना लेयर होता है, ठीक है। आप चाहें तो किसी भी इमेज को किसी के ऊपर ओवरलैप भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। द इन फोटोशॉप द यूजर कैन अरेंज द स्टैक ऑफ लेयर्स इन ईच लेयर image or illustration can be kept this way. Stack of images or and illustrations is created. Layers can be created, deleted, duplicated, arranged, and merged in the layers panel. Default layer is background. So when I have opened that image, then you have seen the background is my default layer. Okay, कोई भी आप फर्स्ट इमेज आप ओपन करेंगे ना, कोई भी आप फर्स्ट इमेज ओपन करेंगे फोटोशॉप में, तो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड ही होता है। ठीक है, फर्स्ट इमेज बैकग्राउंड ही होता है, उसके ऊपर जितना भी आप इमेज डालते जाइए या फिर टेक्स्ट इफेक्ट डालते जाइए, वो ईच एंड एवरी टेक्स्ट और इमेज आपका एक एक लेयर होगा। मतलब ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, जितना भी आप ऑब्जेक्ट डालते हैं अब अपने इस एक बैकग्राउंड लेयर पे, वो सब पर एक नया नया लेयर बनता चला जाएगा। ठीक है, अब लेयर को डुप्लीकेट कैसे करेंगे? सिंपल है, राइट क्लिक कीजिए लेयर पे एंड देन सेलेक्ट डुप्लीकेट लेयर। ओके, से one duplicate copy has been created. If you want to delete that layer, then right click on that layer, click on delete layer. ओके, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाते हैं, थोड़ा देर में दिखाते हैं। ओके ना, लेयर से ही बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को कल होकर के जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं इस लेयर को कंबाइन कर देने के। इस लेयर को कंबाइन करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप इसको सेव एज कर लीजिए, सेव एज डेस्कटॉप पे, यहाँ पे पीएचडी नहीं जेपीजी आप चूज कीजिए, जेपीजी, और उसके बाद सेव कर दीजिए। एक तो ये ऑप्शन हो गया, सेव कर देने पर वो सारा कंबाइन हो जाएगा। और दूसरा, सेलेक्ट कीजिए लेयर को, ठीक है, टॉप लेयर को सिलेक्ट कीजिए एंड देन प्रेस कंट्रोल ई, शॉर्टकट बटन, कंट्रोल एंड ई। सो यू हैव सीन लेयर हैज बीन मर्ज्ड, अगेन इट हैज बीन मर्ज्ड। ओके ना, सो next everyone, selection tools. Selection tool is used to select a specified area. Okay, now there are some options given. Selection is an important part of Photoshop. And देखिए, कोई भी इमेज होता है उसको एडिटिंग करने के लिए हम लोग सिलेक्शन हमारा जरूरी होता है। मतलब कितने कौन से पार्ट को, कितने पार्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, कितने मतलब कितने पार्ट को हम लोग इफेक्ट सेलेक्ट करके वहां पर इफेक्ट डालना चाहते हैं। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू सेलेक्ट द रीजन ऑफ इन इमेज विच यू नीड टू मॉडिफाई। दिस इज द वे the modification tool works only the selected region and the rest of image remains untouched. अब सिलेक्शन टूल क्या करता है? सिलेक्शन टूल, अगर हम जिस भी एरिया को सिलेक्ट करना चाहें, अगर उतने दूर मतलब कुछ स्पेसिफाइड एरिया को हम सिलेक्ट कर लिए, तो कुछ भी इफेक्ट हम लोग डालेंगे ना, तो हमारा स्पेसिफाइड एरिया पर ही होगा, उसके बाहर हमारा इफेक्ट नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए, हम छोटा सा आपको एक दिखाते हैं, लाइक एक इस इमेज को पहले हम की तरह हम कर देते हैं। ओके, हम चाहते हैं, आई एम टेकिंग ए सिलेक्शन टूल, ओके, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, और कुछ इतने दूर के एरिया को हम सेलेक्ट कर लिए हैं। और उसके बाद जब भी कुछ भी हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमारे सेलेक्टेड एरिया पर ही होगा। देखिए, इसका हम ओपेसिटी 100% पहले कर देते हैं। देखिए, बाहर नहीं होता है, सिलेक्टेड एरिया के आउटसाइड नहीं कर रहा है, लेकिन सिलेक्टेड एरिया के अंदर ही कर रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अगर हम बाहर कोशिश कर रहे हैं करने के लिए, तो वो कलर फील नहीं हो रहा, लेकिन सिलेक्टेड एरिया के अंदर ही फील हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्टेड एरिया का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, रेक्टेंगुलर एंड एलिप्टिकल मार्की टूल। मार्की टूल क्या? मार्की मीन्स सिंपली समझ लीजिए कि मार्क करना हम कहेंगे। ठीक है, मार्की टूल से हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको कोई एरिया आपको रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करना है, तो आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल दिया है। ठीक है, जैसा कि अभी हम यूज किए थे, वो मार्की टूल ही था, रेक्टेंगुलर मार्की टूल। और आप चाहते हैं सर्किल या फिर ओवल या फिर इलिप्टिकल शेप लेना, तो आप मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल यूज कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और टूल्स का नाम दिया है, लेसो टूल, पॉलीगोनल टूल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल। लेसो टूल क्या है?
ठीक है, लेसो टूल क्या है? इट दिस टूल्स इज अलाउज टू फ्री हैंड सिलेक्शन अराउंड एनी ऑब्जेक्ट और रीजन ऑन इन द इमेज। देखिए लेसो टूल क्या करता है कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल से समझ में आएगा, आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो। लेसो टूल क्या करता है, ये हमारा लेसो टूल है। लेसो टूल क्या करता है थोड़ा समझिएगा। इस इमेज को पहले जूम करते हैं, कंट्रोल एंड देन प्लस बटन टू जूम दिस इमेज। जैसे कि फ्री हैंड टूल है, मतलब कि इसको जहां पर जैसे चुन चाहे वैसे आप सेलेक्ट करके ले जा सकते हैं। ठीक है, लेसो टूल आपका फ्री हैंड टूल है, जैसे चाहे वैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पे कोई इफेक्ट ऐसा नहीं। आप इमेज के आउटसाइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेज के इनसाइड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉलीगोनल लेसर टूल। पॉलीगोनल लेसर टूल क्या है, देखिए समझिए। पॉलीगोनल लेसर टूल से जैसे कि आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे लेसर टूल फ्री है, फ्री हैंड इसको कहेंगे, मतलब कैसे भी जैसे ड्रॉ करना चाहे वैसे। लेकिन पॉलीगॉन क्या है, एक लाइंस के तरह हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, द पॉलीगॉन लेसर टूल हेल्प्स टू मेकिंग द सिलेक्शन बाय using a series of lines and making a polygonal selection। ओके, सो देखिए पॉलीगोनल हम लोग लाइन से कैसे करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि लाइक हम इस हैंड को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं बाय यूजिंग पॉलीगोनल, तो हमें पहले थोड़ा जूम करना होगा, कंट्रोल प्लस। अब देखिए पॉलीगोनल का हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर जितना भी आप देख रहे होंगे, ये सारा हमारा एक लाइन से ही बन रहा है। देखिए काफी इजी तरीके से हो जाता है सिलेक्शन हमारा। ठीक है ना। हम इतना ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हम इसकी कॉपी बनाते हैं। कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल अल्ट होल्ड करेंगे और इसे ड्रैग करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा ये इसका एक कॉपी बन चुका है। ठीक है, इसका एक कॉपी बन निकल चुका है। तो इस तरीके से हम लोग टूल्स का यूज करते हैं। एक टूल है और आपका मैग्नेटिक लेसो टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका है। मैग्नेटिक लेसो टूल बहुत अच्छा है एक तरह से। ये हमारे एडिटिंग को बहुत इजी कर देता है। द मैग्नेटिक लेसो टूल senses the color sensitivity and help us to precise the selection of any object or region। देखिए मैग्नेटिक लेसो टूल क्या करता है, जो सेम पेयर ऑफ कलर होता है ना, उसको मैच करके उसको सेलेक्ट करता है। जैसे देखिए सेलेक्ट, if magnetic lasso tool is not there on your Photoshop, then hold the button on the selection tool, लेसो टूल, पॉलीगोनल टूल, आपके कंप्यूटर में जो भी आ रहा है, लेसो टूल आ रहा है या पॉलीगोनल आ रहा है, उस पर क्लिक करके होल्ड रखिएगा बटन, तो वहां पर आ जाएगा ऑप्शन। तो हम चूज कर रहे हैं मैग्नेटिक लेसो टूल। ठीक है, अब मैग्नेटिक लेसो टूल का देखिएगा हम क्या क्या इफेक्ट आपको दिखाते हैं। हम सपोज कीजिए हम नॉर्मली हम सिर्फ माउस को सिर्फ ले जाएंगे, ये अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। देखिए हम क्लिक नहीं कर रहे हैं। देखिए क्लिक नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप सिलेक्ट करता है। ये चूंकि इमेज का क्वालिटी हाई नहीं है, इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन अगर हाई क्वालिटी रहता ना, तो देखिए यहाँ पर हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये इमेज क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा होता तो ये अपने आप आगे बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट करता। देखिए बिना विदाउट क्लिकिंग के ये अपने आप ये कलर सेंसिटिविटी के थ्रू काम करता है। ठीक है, देखिए
ये भी एक तरह से सिलेक्शन हो गया हमारा। ठीक है, ये भी एक तरह से हमारा सिलेक्शन है। ये मैग्नेटिक लेसो टूल तब आपका और अच्छे से काम करेगा जब आपका इमेज और हाई क्वालिटी का हो। ठीक है, जब आपका एक छोटा सा हम हाई क्वालिटी का इमेज भी आपको दिखा देते हैं ओपन करके, जैसे उस पर हम काम करके आपको दिखा देते हैं। लाइक हम ले लेते हैं और न्यू इमेज ले लेते हैं। हाँ, यही ले लेते हैं। अब इसी इमेज में हम आपको दिखाते हैं यूज करके। कंट्रोल प्लस प्लस। चलिए हम सपोज करते हैं डी को, यहाँ पर जो जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है, इस डी को हम सिलेक्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहले तो हम स्क्रीन जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेगा। Without clicking, it will automatically sense the color and then select। देखिए, ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसको कहीं भी हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारा क्या। नेक्स्ट हमारा आता है क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वैन टूल्स। ओके, तो क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वैन टूल्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वैन टूल्स देखेंगे। ठीक है, और सिलेक्शन मोड्स भी देखेंगे। इमेज मैनिपुलेशन टूल्स वगैरह के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और क्या दिया है, स्लाइस, ये सभी हम लोग तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पॉट हीलिंग बस तक हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ तक। ठीक है, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका ज़्यादातर इसमें से कवर हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक यू।